Hello my friends, welcome to Be Educate. So in this particular video we'll talk in detail about the IIM Rohtak. Yes guys, if you are CAT aspirants looking for the top IIMs, then you can place the IIM Rohtak at the 8th place. Yes guys, यहाँ हम बात करेंगे in detail about the IIM Rohtak, eligibility criteria, programs which are offered by the IIM Rohtak and the expected cutoffs. So admission process क्या होने वाला उसके बारे में बात करेंगे. We'll talk about the selection process in detail. क्या आपके 10th एंड 12th आपके एकेडमिक को क्या वेटेज होने वाला है इवन फॉर योर ग्रेजुएशन एंड इवन इफ यू हैव द वर्क एक्स. ओके, विल टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर, विल टॉक अबाउट द आरओआई एंड आल्सो द प्लेसमेंट स्टैट्स. सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इफ यू आर न्यू टू द यूट्यूब चैनल डू सब्सक्राइब इट बिकॉज हियर यू विल गेट लॉट मोर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द IIMs, with respect to all the MBA entrance exams. So guys, want a preparation, then you can join us for CAT and the respective entrance exams. You can interact live with us and even you can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. IIM Rohtak is the IIM established by the Ministry of Education, Government of India, White IIM Act 2017, and it is an institute of the national importance as per the Ministry of Education. Established in 2009, Indian Institute of Management Rohtak is a benchmark for top management education in India with the vision to become a global leader in due course, and it will be because it is situated in the NCR. And guys, NCR में आपको 200 plus companies मिलने वाली है, the top notch recruiters who will pick you up. The state of the art campus spread over an area of 200 acres is strategically located on National Highway 10 and it is well connected to the Delhi. The IIM Rohtak has been ranked amongst the top 5 IIMs in the research and it is the 8th in the family of state supported management schools. अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ गाइस, दैन निफ्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये 12th प्लेस पर है, IIF के अकॉर्डिंग ये 21st प्लेस पर है, एक्रेडिटेशन एसोसिएशंस ऑफ एम्बा, एंड ग्लोबली अगर बात करूँ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये 151 पर स्टैंड करता है. सो गाइज, ओवरऑल काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं क्योंकि दिल्ली NCR में सिचुएटेड है और यहीं बहुत सारी कंपनीज है जहां आप अपनी इंटर्नशिप्स भी करोगे एंड समर इंटर्नशिप्स भी होगी एंड इवन गाइज आपको यहाँ PPOs भी मिलने वाले हैं और वो बहुत अमेजिंग होने वाला है. सो माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. Programs and seats. So here you can pursue the PGP program जो कि flagship program है. Thereafter doctoral program. One more program जिसे काफ़ी अच्छी recognition मिल रही है and that is the 5-year integrated program in management. अगर आप 12th candidate हो और आप इस particular वीडियो को देख रहे हो then IIM Rohtak आप टारगेट कर सकते हो. आपका सपना पूरा हो सकता है, बस आपको IP MAT का एग्जाम देना होगा. So IIM Rohtak conducts their own exam जिसका नाम है IP MAT. सो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो. इवन दे हैव स्टार्टेड द 5-year इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री विच इज टर्म्ड एज IPL. आप वो भी परस्यू कर सकते हो आफ्टर गिविंग द CLAT exam. Okay, fellow program in management, and there are various executive programs. One of them, the sports management, the executive education MDP, executive education short term, and 1-year postgraduate program in management for executives PGPX, specifically for the work experience candidate. Now जो बैच स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हो 237. ओके, ओवरऑल जो यहाँ सीट्स है गाइस कम है, हाँ 220 से 250 तक अप्रोक्स आपको सीट्स मिल जाएगी पीजीपी को लेकर. जेंडर डाइवर्सिटी 1:2. एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 19 मंथ. एकेडमिक डाइवर्सिटी कॉमर्स से भी कैंडिडेट्स है, इंजीनियरिंग से भी है, साइंस से भी है, आर्ट्स एंड अदर से भी है. सो भाई कोई भी हो, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड से आप हो, आप यहाँ इंटर कर सकते हो. वर्क एक्सपीरियंस की बात करो देन गाइस, देखो 71% फ्रेशर से यहाँ. सो भाई कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं गाइस, आप यहाँ अपना करियर इजीली बना सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल OBC कैंडिडेट एंड 45% मार्क्स फॉर SC ST. इवन आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो EWS. अ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यू आर एलिजिबल. और जिनकी डिग्री हो चुकी है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, भाई आप भी अप्लाई कर सकते हो एंड देयर इज नो एज बार. सो भाई एक ही आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड से हो आप एलिजिबल हो. अब बात करते हैं भाई पेपर पैटर्न को लेकर. सो आपको देना है CAT का एग्जाम, राइट. ऑल द कैंडिडेट्स आफ्टर 12th आप दे सकते हो IP MAT का एग्जाम. ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली CAT को लेकर. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 66. टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला आपको 120 मिनट्स. यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका आपको ध्यान में रखना है, +3 एंड -1. सो भाई आपकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी होनी चाहिए. एक्यूरेसी होगी तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो करेक्ट वन होंगे और उससे आपके जो परसेंटाइल है 90 to 95 परसेंटाइल ईजिली बन जाएंगे. अब अगर आपको IIM Rohtak टारगेट करना है और आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, हालांकि क्या परसेंटाइल होने चाहिए मैं बताऊंगा आपको, लेकिन गाइज आपको टारगेट करना है 95 परसेंटाइल किसी भी हालत में. 95 टारगेट नहीं करोगे तो भाई यहाँ एडमिशन नहीं मिलने वाला. क्यों? क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी तो है ही है, लेकिन गाइज यहाँ जो वेटेज मिलने वाला है आपके परसेंटाइल को मैक्सिमम वेटेज है. अब बात करते हैं सेक्शंस को लेकर. सो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर 24 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ.
डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग को लेकर 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 22 क्वेश्चन। सो ओवरऑल आपको मिलने वाले 66 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दीज 66 अगर आपको 95 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के बीच में आना है देन गाइज आपको एक्यूरेसी बड़ी अच्छी मेंटेन करनी है और आपको एटलीस्ट 33 to 40 क्वेश्चंस के बीच सॉल्व करना है विथ 90 to 95% एक्यूरेसी। अब कैसे देखो गाइस, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर आपको 4 आरसी मिलती है, राइट। 16 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाते हैं। उसके बाद जो आपका 8 क्वेश्चंस है, 2 मिलेंगे पैरा जंबल से, 2 मिलेंगे पैरा कंप्लीशन से, 2 मिलेंगे समरी से एंड 2 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द ऑड वन आउट। सो ओवरऑल ये 8 क्वेश्चंस हो गए। सो यहाँ भाई 2 आरसी सॉल्व करो, एक और इजी आ जाता है तो 3 आरसी सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद 8 क्वेश्चन तो ये सॉल्व करने ही है। सो ओवरऑल आउट ऑफ दीज 24 अगर आप 18 to 20 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व कर लेते हो या 15 से 17 क्वेश्चंस भी, भाई आपके 95 परसेंटाइल प्लस इजीली बन जाएंगे। देखो गाइस ये डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। अगर पेपर थोड़ा इजी लेवल का है तो भाई ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अच्छे अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर डिफिकल्ट रहेगा तो आपके ये सुझाव रहेंगे मेरे तरफ से। अब आगे बात करते हैं DILR को लेकर। सो यहाँ आपको मिलने वाले 4 सेट, तो इसमें से आपके 2 से 3 सेट तो आपके हो जाने चाहिए जहां आपके 8 से 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें, 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी 5 रीजन से। फर्स्ट है आपका अरिथमेटिक पार्ट। अब अरिथमेटिक में गाइज आपको देखो एवरेज, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस स्पीड, इनके ऊपर अच्छा फोकस करना है क्योंकि यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अलजेब्रा को लेकर, सो यहाँ आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी स्लॉट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, किसी में 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अलजेब्रा के मोस्टली क्वेश्चंस आपको दिखने लगेंगे पेपर में सीधे जब 8 क्वेश्चंस होते हैं तो। सो गाइज आपको फोकस करना है, यहाँ भी आप अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपको ज्योमेट्री को लेकर 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यूजुअली 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। उसके बाद आपको फोकस करना है मॉडर्न मैथ पर, और मॉडर्न मैथ में से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस एंड लास्ट वन द नंबर। अब नंबर्स पर भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो भाई 14 to 15 क्वेश्चंस तो आप इजीली यहाँ सॉल्व कर सकते हो, फिर भी अच्छी एक्यूरेसी है। और अगर आप 12 से 13 क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व कर लेते हो भाई आपके 95 परसेंटाइल तो इजीली बन जाएंगे। सो भाई कैट का एग्जाम कब होता है, टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट, फिर एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। एग्जाम की जो डेट है गाइज लास्ट वीक ऑफ नवंबर, और रिजल्ट जो अनाउंस होता है जनवरी में। उसके बाद इनके काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और कैसे आप यहाँ एंटर कर सकते हो। सो गाइज सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी यूनिक है IIM रोहतक को लेकर। हालांकि जितने भी IIMs है हर एक का सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है। सो गाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे IIMs को लेकर, आप उनको जरूर देखना। जिस भी रिस्पेक्टिव IIMs को आप टारगेट कर रहे हो इन डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा गाइज। ओके, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PGP एडमिशन 23-25, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो अभी आप 24-26 के लिए ट्राई कर रहे हो, राइट। सो मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट इंश्योर दैट द कैंडिडेट इज शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, जनरल कैटेगरी हो, आपका ओवरऑल जो परसेंटाइल होना चाहिए 95 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए, यानी 95 के नीचे हो तो आपको IIM रोहतक कॉल नहीं करेगा। देखो गाइस कुछ टॉप IIMs है जो IIM रोहतक के भी ऊपर है, वो आपको 90 पर भी कॉल दे देंगे। अगर आप कोई डिफरेंट फील्ड से हो, ठीक है, वो मैटर करती है, लेकिन IIM रोहतक में वो इतना मैटर नहीं करता। यहाँ आपके परसेंटाइल काफ़ी अच्छे चाहिए। EWS को लेकर ओवरऑल चाहिए आपके 90 परसेंटाइल, NC OBC 78, SC को लेकर 55, ST 30 एंड DAP 30। अब यहाँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आप फिक्स बैठ रहे हो, ठीक है, आपके स्कोर अच्छे हैं, भाई आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। All shortlisted candidate at stage 1 will appear in the stage 2, that is online personal interview. All the shortlisted candidates will be informed by the emails, ठीक है, आपको कॉल लेटर आ जाएगा, डाउनलोड करना है भाई, डेट टाइम वेन्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो कैसे होगा। सो आपका जो कैट है इसको मिलने वाला है 60% वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू को मिलने वाला है 20% वेटेज, एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी को मिलने वाला है 20% वेटेज, ठीक है। जेंडर डाइवर्सिटी हम भाई 5 to 10 मार्क्स समझ सकते हैं, एकेडमिक डाइवर्सिटी आप 10% पकड़ लो, ठीक है। सो यहाँ हो गए आपके आउट ऑफ 100। अब आउट ऑफ 100 ये क्या करेंगे, एक मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट मेरिट लिस्ट जो हर एक कैटेगरी को लेकर अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है, जनरल की अलग, EWS की अलग, और उसके अकॉर्डिंग बस आपको अब कॉल आने वाला है। इनकी जो 4th स्टेप है दैट मीन्स आपको कॉल आ गया, शॉर्टलिस्ट किए गए, आपको विजिट करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब होने वाला है और आपको रिस्पेक्टिव जो फीस है वो पे करनी है और अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। सो गाइज इजी प्रोसेस है, यहाँ कोई वैट नहीं है,
यहाँ आपके वर्क एक्सपीरियंस को भी अलग से कुछ वेटेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ एकेडमिक डाइवर्सिटी के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी को वो 5 दे सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस को भी 5 दे सकते हैं। सो ओवरऑल क्या प्रोसेस होने वाला है इन अपकमिंग ईयर, हुआ हो सकता है कि शायद चेंज हो। अब तक ये जो प्रोसेस है गाइस काफ़ी सिंपल रखा है इन्होंने, 60-20-20, दैट्स इट, इजी प्रोसेस है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर को लेकर। सो फी स्ट्रक्चर यहाँ ज़्यादा नहीं है गाइस एज कम्पेयर टू अदर आईएम्स, लेकिन हाँ जो प्रीवियस ईयर की फीस थी 23-24 को लेकर 8,95,000 फॉर योर फर्स्ट ईयर एंड दे आफ्टर 8,95,000 फॉर योर सेकेंड ईयर। सो ओवरऑल जो आपकी फीस बन जाती है भाई 17,90,000 फॉर 2 years एंड दे आफ्टर अदर फीस। In addition to the above, the mace fee will be informed at the starting of first and second year respectively, वो आपकी अलग से रहेगी। Student will also be required to pay the placement facility charges, that is 30,000 per year, and alumni membership fee 6,500 ये additional होगा, and caution money of ₹10,000 दैट इज रिफंडेबल, ये आपको रिफंड हो जाएगा। सो ओवरऑल भाई आप मान के चलो कि भाई 19 to 20 लाख आप यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो। सो क्या ये वर्थ इट है, क्या ये आपको बेस्ट आरओआई प्रोवाइड करेगा? और गाइस फी स्ट्रक्चर की अगर दिक्कत है डोंट वरी एट ऑल। देखो गाइस ये फी स्ट्रक्चर जरूर हाई है, हर एक के लिए हाई है। सो भाई काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो IIM रोहतक आपको प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ फाइनेंशियल एड्स भी मिलने वाले हैं। सो उसके बेस पर आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। भाई कंडीशन एक है कि आपको कैट में जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर लाना होगा, दैट इज़ 95+ परसेंटाइल। और उसके बाद जो आपके एकेडमिक रहने वाले हैं इन फर्स्ट ईयर, यानी टर्म के बेस पे भी देखें आप, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो भाई फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म हो गया, आपको सेकंड ईयर में वापस स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। सो उसका भी एक बेनिफिट उठाना। देखो आपके हाथ में है पूरा प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में आप अपना 100% दे सकते हो। बस फर्क यही है कि भाई दे नहीं पा रहे हो तो कैसे देना है, उसको लेकर स्ट्रैटेजी वीडियो आने वाली है गाइस। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ काफ़ी कुछ कंटेंट मिलने वाला है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द MBA एंट्रेंस एग्जाम्स। अब बात करते हैं भाई प्लेसमेंट स्टैट्स को लेकर। सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द 120+ रिक्रूटर्स, रिसीव 37+ PPOs, फेथ ऑफ 45+ न्यू रिक्रूटर्स, ग्रेट। हाइस्ट जो पैकेज गया है गाइस 36 लाख पर एनम। एवरेज की बात करूँ 18.73, हालांकि दूसरे जो IIMs देते हैं एवरेज पैकेज 20+, 25+, 30+, ये उतना नहीं दे पाता, लेकिन गाइज यहाँ का एक्सपोजर अमेजिंग है। इंटरनेशनल पैकेज जो है वो इससे भी काफ़ी बेहतर होने वाले हैं, ठीक है। मीडियन CTC की बात करते हैं 17.5, इंक्रीज 16.7% ईयर ऑन ईयर, एवरेज CTC इंक्रीज, ग्रेट। टॉप 10% को यहाँ मिला है 34.68, टॉप 25 को मिला है 27.15 एंड टॉप 50% को मिला है यहाँ 22.64। गाइज अगर मैं बात करूँ सेक्टर वाइज, कंसल्टिंग 24%, हाईएस्ट मिला 32.21, जर्नल मैनेजमेंट 21%, हाईएस्ट मिला 19.5, एवरेज 17.8। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस को लेकर 19%, एवरेज 15.82, IT ऑपरेशंस 15%, एवरेज 22.63 एंड सेल्स एंड मार्केटिंग एवरेज 19.90। सो ओवरऑल भाई काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। 19 से 20 लाख का पैकेज आपको इजीली यहाँ मिल सकता है। सो ओवरऑल गाइज दिस इंस्टीट्यूट इज वर्थ इट। जितनी फीस है उतना रिटर्न तो आप बस 1 साल में वसूल करने वाले हो। सो गाइज लेट्स टारगेट IIM रोहतक थ्रू कैट। If you wanna become part of all these top-notch companies, then guys start preparation with us. Join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation. And if you are Pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.